ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਆਲ YouTube ਫਰੈਂਡਸ, ਮਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਿੱਲ ਟਰੈਵਲ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗਿੱਲ ਟਰੈਵਲ ਵਰਲਡ YouTube ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਟੂਰ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ YouTube ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ, ਗਿੱਲ ਟਰੈਵਲ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 10:30। ਗੋਰੇ 10:30। ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੌਗ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਵਾਈਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 5:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਉਡਾਨ ਢਾਬਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫੌਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੁੰਦ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਢਾਬੇ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਦਿੱਲੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜਾ ਸਟਾਪੇਜ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਖਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਰ ਸਿੱਧਾ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਔਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪੇਜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪੇਜ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪੇਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਟਾਰਬਕਸ, KFC, ਜੋਲੀਗੋ, ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਹੈਗਾ।
गाड़ी आगे जाएगी ना? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਗਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਓਨਲੀ ਕਿਲਾ ਆ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ। बताया है मैं भी देखे ਇਹ ਐਂਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿਲਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ मैं देखता हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ अनिल यादव गाइड ने ये भूलभुलैया महल ये पूरा दसनगे सामने। आपने मानसिंह के बारे में सुना ही होगा। एक मानसिंह थे अकबर के सेनापति सवाई मानसिंह, लेकिन ये मानसिंह बाबर से पहले का किला है। ये बाबर से पहले का राजा मानसिंह कम से कम कितना पुराना है ये 15वीं सेंचुरी का महल ही महल, मतलब 500 वो हो गया 515 वर्ष पुराना। हाँ और 515। बाकी किले की दीवार है 6वीं शताब्दी की, 1400 साल पुरानी किले की दीवार। इंडिया का तीसरे नंबर का किला। फर्स्ट नंबर का आपने देखा हो राजस्थान में कुम्भलगढ़, इसकी दीवार है 36 किलोमीटर की बॉडी वाल, चाइना के बल के बराबर। और सेकंड नंबर है चित्तौड़गढ़, वो भी राजस्थान में, जिसकी दीवार है 14 किलोमीटर। और तीसरे नंबर का फोर्ट आप देख रहे हैं ग्वालियर फोर्ट, इसकी दीवार है 10 किलोमीटर की एरिया में। किले की दीवार जो आपने सिटी से भी देखी होगी, किला इतना बड़ा है, किला एक दिन में नहीं घूम सकती। किले का मेन हिस्सा यही है। बाकी 65% का हिस्सा पूरा सिंधिया स्कूल के अंडर में है। जैसे आपने गाड़ी की चढ़ाई की होगी, किले पर आने के लिए 2 रास्ते, एक गाड़ी वाला गेट और वाई गेट, एक पैदल वाला गेट, ये किले का मेन गेट। अगर आप जीपीएस से आते तो गाड़ी आपके पीछे फंस जाती, क्योंकि किले का मेन गेट पीछे ही है। जीपीएस का भी गलत नहीं होता, यहाँ से फिर धीरे धीरे पैदल चढ़ के आना पड़ता आपको। किले का मेन एंट्रेंस राजा का हाथी पोल गेट, क्योंकि पैलेस हो या हाउस हमेशा एंट्रेंस ईस्ट में होता है, मेन एंट्री गेट यही है। तो राजा मानसिंह तोमर ने टोटल यहाँ जन्म लिया, तो उसकी टोटल 9 शादियाँ की, 9 मैरिज। 8 रानियों के साथ की राजा ने अरेंज मैरिज, उनके लिए बनाया गया पैलेस। लेकिन जो 9वीं शादी की थी वो अदर कास्ट की लड़की थी। कास्ट उसकी थी गुजर, और वो उसका नाम था मृगनैनी। क्या मृगनैनी नाम था उनका, 9 मृगनैनी। क्योंकि 9वीं शादी क्या है, उन्होंने अदर कास्ट में कर तो ली, लेकिन क्या लड़की ने पहले मना कर दी। उन्होंने कहा मैं महाराज आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी 8 रानियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, तो आप शादी करवाओगे तो मेरी कुछ शर्तें हैं। तो उन्होंने 3 शर्त रखी। पहली शर्त में उन्होंने कहा मैं कभी पर्दा नहीं करूँगी, क्योंकि रानियाँ पर्दे में रहती थी। दूसरा उन्होंने ये कहा था जब भी आप लड़ाई के लिए शिकार के लिए जाओगे साथ में चलूंगी। और तीसरी कंडीशन में कहा शादी के बाद मैं अपने गांव का ही नदी का पानी पीना चाहती हूँ, मुझे आपके ग्वालियर का पानी नहीं पीना, अपने गांव से ही पानी की पाइपलाइन होगा मेरे लिए। तो उन्होंने क्या किया, उनके गांव से चूने की पाइपलाइन डाली और हाइट की वजह से महल किले के मेन गेट पर बना दिया सिटी में गुजरी महल। जो आप आए थे ना जीपीएस से मेन गेट पर, किला का पुरातन संग्रहालय, वही नवी रानी का महल बनाया। तो लव मैरिज की तो राजा ने कंडीशन फॉलो करके महल नीचे बना दिया। बाकी 8 रानियां महल में एक साथ रहती थी। इसी महल को लोग बोलते हैं भूलभुलैया महल। तो आपने सुना होगा ये भूलभुलैया लखनऊ में भी है, बड़ा इमाम बड़ा, ये भूलभुलैया उससे पुरानी है। इसको देखकर वो डबल बनाएगी, क्योंकि नकल करके लोग फेमस हो जाते हैं। आपने सुना होगा नकल करने वाला औधा है अंबारी, अंबारी बैठ के निकलती थी, राजा की होती थी, बड़े बड़े औधे, रानियों के लिए। अच्छा अच्छा, इधर आके हाथी खड़ा हो जाता था, यहीं से हाथी बैठ के निकलता, तो हाथी पे इधर से बैठ हाथी यहाँ खड़ा करते थे उस समय। और राजा के लिए बड़े बड़े वो लगाते थे गद्दे, औधा बोलते हैं उसको, अंबारी, यहीं से बैठ के निकलते हैं। रानियों के लिए बंद वाली। और दूसरा क्या, सिपाही उधर थे? सिपाहियों के कमरे ये वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ये सब जाली लगा कर बंद करा दिए गए, मैं समझ गया, क्योंकि आने वाले समय में म्यूजियम बन जाएगा तो इसको खोलेंगे। ओके। तो इस महल को बनाने में लगे थे 30 साल।
1486 से 1516। 30 साल तो बनाने में लग गया, क्योंकि इसमें सीमेंट नहीं है, इसमें गोंद, चूना, गुड़, उड़द की दाल और बेलपत्र का इस्तेमाल हुआ है। मान मंदिर पैलेस बिल्ड इन द रेंज ऑफ राजा मान सिंह। सीमेंट नहीं है, गोंद, चूना, गुड़, उड़द की दाल, उड़द की दाल और बेलपत्र। ये देखिए, अंदर कोई भी अंदर एंटर करता था ना सर, तो उस समय राजा रानियों की हाइट कम नहीं थी, कोई भी अंदर आता था सिर झुकाने के बाद एंट्री मिलती थी। रेस्पेक्ट, सिर झुकाने के बाद अंदर आ जाओ, नहीं तो रानियों के बॉडीगार्ड छक्के उसकी गर्दन काट देते थे। छक्के से क्या रानियां सेफ रहती थी, झुकाना पड़ता। तो राजा ने एक कलाकारी देखो तुसी। रानियां बैठती थी पर्दे के पीछे, फर्स्ट जाली के पीछे फर्स्ट पर्दा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। और संगीतकार यहाँ उनको संगीत सिखाते थे। ओके, गायक कलाकार बैजू बाबा। ਇੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ये राजा का मीटिंग हॉल था दीवाने खास, जिसमें राजा अपनी रानियों को लेकर, मंत्रियों को लेकर मीटिंग करने के लिए आते थे। ऊपर जो गद्दी है वहाँ राजा बैठती थी, ये देखिए ओके। भैया, वहाँ राजा बैठती थी। राजा के लिए गोल्ड वाली छतरी, गोल्ड के कलर। रानियां हमेशा पर्दे के पीछे बैठती थी, ये जाली वाले पर्दे रानियों वाले बैठने की जगह। ये वाले फैमिली मेंबर्स ऊपर वाले पर्दे बैठते थे। ओके। इसमें जो आपने नीला कलर देख रहे हैं, ये उसी का 515 साल पुराना कलर। इस कलर को बोलते हैं मीनाकारी। ओके, इस कलर को बनाने में गिलास, जड़ी बूटियां, 515 साल पुराना ब्लू कलर है जी, मीनाकारी कहते अभी हैं। नया कलर होता ना एशियन पेंट, 2 साल में निकल जाता था। पुराना तो देख भी पा रहे हैं आप, नया आप कितना भी अच्छा कर दो, गिरेगा। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, राजा वहाँ बैठते थे, ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ। ताकि रानियों का चेहरा कोई बाहर का बंदा न देख पाए। ओके, जिस बंदे ने रानियों को देखने की कोशिश की, थोड़ी थोड़ी शेर के पैर घोड़े के मिक्स ऑफ एनिमल, इसको हिंदी में बोलते हैं शार्दुल। अच्छा ਕੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ। इसमें आप देखेंगे तो 3 एनिमल है, छोटा हाथी का बच्चा है, बड़ी हाथी की सूंड है, बॉडी पूरी शेर की है, पैर घोड़े के हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं शार्दुल। ओके, शार्दुल मतलब शेर का बच्चा, और शेर का बच्चा मतलब छावा, और ओ। छावा मतलब सूबेदार। छावा मतलब ठीक है, जो ठीक है। ना, छावा मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰ मिला के रखे हुए ये हैं। देखिए स्ट्रक्चर और रुद्राक्ष। ना मतलब है शावा। देखिए पाजी, इसमें रुद्राक्षी माला भी दिखाई देंगी आपको। और ये मंदिर था पूजा घर, इसमें से रुद्राक्षी माला है, तुलसी की माला है, बाहर देखेंगे पूजा की थाली है, चक्र का सिंबल है, ये पत्ता तुलसी का पत्ता देखिए। तो आपको ओके। देखने में लग रहा होगा ये मंदिर है, लेकिन ये दरवाजे कहीं नहीं थे। यहाँ जो कुंडे लगे हुए हैं, यहाँ पर्दे लगाए थे। और इसके ओके। अंदर 33 प्रकार की मूर्तियाँ थी, 33 कोटि। कोटि ओ। मतलब प्रकार। ये देखिए, ओके। ये सब मुगल पीरियड में हटा दी गई। ये देखिए, इसके अंदर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। अच्छा, ये जो महल बनाया अपने हिंदू हिंदू राजा ने बनाया। हिंदू राजा की तरफ से था, इसमें पुराने समय तो की उन्होंने जब कब्जा किया तो उसके बाद उन्होंने हटा दिया, चेंज कर दिया। ये चोरी करने वाले अंग्रेज कहाँ लगे थे? इसके अंदर पन्ना और रत्न, कीमती कीमती आभूषण। ओ, और जो पीछे का जो रास्ता है, वो परिक्रमा बहुत था, उधर से राजा अंदर घुसते थे, वहाँ से बाहर निकल जाते थे पीछे। कौन? परिक्रमा करने का रास्ता। अच्छा, परिक्रमा करने का, ये परिक्रमा करने का रास्ता है। चलो चलो, ये लाइब्रेरी रूम है। ओके, तो रानियों की दासियां उनके साथ सुरक्षा करती थी, तो अगर कोई भी जाता था मिलने के लिए, सिर झुकाकर रेस्पेक्ट, और बगैर परमिशन कोई अंदर चला गया उसको मार दिया। ओके। अगर गलती का डांसिंग हो, देखने में सब सेम लगेगा आपको, बस कलाकारी में डिजाइन अलग लगाए गए हैं। जैसे वहाँ मंदिर है रुद्राक्षी, यहाँ डांस होता था, ये घुंघरू है, सारा कुछ स्टोन के अंदर है, स्टोन में सब कुछ बनाया गया। ये डांसर को मेकअप मेकअप करती थी, वहाँ चलता था डांस यहाँ, और वो राजा वहाँ बैठती थी। वो राजा ऊपर। के लिए फूलों वाली छतरी, गोल्ड के कलर, रानियां पर्दे के पीछे, इधर भी पर्दे उधर ही पर्दे, क्योंकि नाम है गुरु दाता बंदी छोड़। इसमें दिए लाती थी। गुरुद्वारे का नाम दाता बंदी छोड़। आज अमावस्या भी है, बहुत अच्छा फेस्टिवल भी है। अरे बेडरूम एसी रूम, क्योंकि उस समय ये राजा का पर्सनल बेडरूम है जी। पर्सनली हवा आती थी, नेचुरल कूलर सिस्टम के सामने है। बिल्कुल गर्मियों का समर बेडरूम। अगर राजा की इच्छा है रानियों को बुलाना है, ये प्राइवेट सेक्स वाला है। इसमें राजा हाथ वाले पंखे लगे हुए हैं। ओके। यहाँ बैठकर वहाँ बैठकर पंखे को आते थे घुमाती रहती। ये उनका समर बेडरूम और वो उनका एंजॉय वाला बेडरूम। ओके, राजा रानियों को प्राइवेट जगह हर पक्ष। ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਹੈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ। ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਹਰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ गाइड। पुराना समय का साइंस कहाँ है? साइंस यहाँ है। देखिए टेक्नोलॉजी अभी भी बरकरार है, लाइट चली गई फिर भी अंधेरा नहीं है। और ये देखिए अंदर कोई भी आता था सिर झुकाने के बाद एंट्री, क्योंकि ये कमरा था रानियों का झूला घर। इसमें रानियां झूला झूलकर गाना गाती थी। ये आप देख रहे हैं भाजी, फर्स्ट आने के लिए फर्स्ट झूला उसी समय की कुंडे, सेकंड आने के लिए सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, तो 8 रानियां मिल जुलकर एक साथ झूला झूलती। लेकिन बाद में जब मुगल पीरियड आया तो औरंगजेब ने झूले को तोड़कर इसी कमरे को बनाया था फांसी घर। औरंगजेब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई को मारा था दिल्ली में, दारा शिकोह को, और छोटे भाई मुराद बख्श को यहाँ फांसी में लटका दिया। तो बोलते हैं ना लोग दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे बोलो, ये वही दीवारों वाले कान है, अभी चालू है। यहाँ से हमारे नीचे जाती है, नीचे के भाई रानी बिल्कुल। ये 2 मिनट, ये सबसे अच्छा साइंस है। देखिए क्रॉस वेंटिलेशन लाइटिंग का अरेंजमेंट की देखो आप, जबरदस्त इंजीनियरिंग। ये पुराना समय का फिजिक्स, उत्तल लेंस अपतल लेंस शीशे लगाकर लाइट नीचे टकराकर ऊपर पहुंचती थी, ऊपर से नीचे घूमती थी। इस पे जिसको बोलते हैं गुरुद्वारा। चलिए नीचे चलेंगे अभी। इतों सारा शहर देख रहा है, ये देखो सारा ग्वालियर शहर है। हाँ लाइट आ गई। की माता कुंती ने वहाँ जन्म लिया कुंतलपुर में। उसी गांव के राजा सूरजसेन यहाँ शिकार जलते थे, उन्होंने किले की दीवार रखी। नींव रखने वाले वही थे। अच्छा कौन थे राजा नाम उसका? राजा सूरजसेन कछवा राजपूत। सूरजसेन सूरजसेन, ये पाल वंश के राजा थे, कछवा राजपूत। ओके। और इनका सरनेम अभी चेंज हो गया कुशवाहा, पहले कछवा दे रियल में। और ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ये वो जो दरवाजा यहाँ से नहीं था, मेन मंदिर का रास्ता पहले आगे से था। क्योंकि मंदिर का रास्ता में था ईस्ट में रहता है, पूरब दिशा में, तो पूरब दिशा से एंटर करते थे। मानसिंह तोमर के समय का ये शिव जी का मंदिर था। इसमें टोटल खंबे थे 84 खंबे थे इसमें उस समय। ओके। लेकिन जब बाद में जहांगीर आया तो जहांगीर ने बीच में एक शिवलिंग थी, उसको यहाँ से निकालकर शहर में गिरा दिया और इसको बना दिया ओपन जेल। ओके। जेल बनाने के बाद जब 52 खंबे अंदर हैं, उनमें हिंदू 52 राजाओं को बांध के रखा गया। और ये राजा यहाँ के नहीं थे, पहाड़ी राजा थे उत्तराखंड के। ये 52 पहाड़ी राजा ने कैद करके रखे। इसमें लोहे के कुंडे भी लगे हुए थे। ये भी गवर्नमेंट ने लोहे के कुंडे यहाँ से निकाल लिए गए, क्योंकि लोग यहाँ से निकाल के ले आते थे। ओके। इतने कुंडे लगे हुए। ये देखिए लोहे के निशान लोहे की। और गुरुजी महाराज ने इनको छुड़ाने के लिए 2 साल 3 महीने तपस्या की वहाँ, जो आपने मत्था टेका हुआ गुरुद्वारे के नीचे। तो 2 साल 3 महीने तपस्या को देखकर जहांगीर बादशाह बीमार पड़ गया। उनको सपने में हर समय गुरुजी दिखते थे। तो उनको छोड़ने के लिए ग्वालियर आया 1 दिन के लिए और बोला महाराज आप तपस्या बंद कर दो, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज ने ये कहा जब तक आप राजा को नहीं छोड़ोगे जब तक नहीं जाऊँगा। ये वाली बात क्या जहांगीर को अच्छी लगी। जहांगीर ने कहा मैं राजा को छोड़ूंगा, लेकिन मैं उन राजाओं को छोड़ूंगा जो आपके सामने आपके कुर्ते को पकड़ेगा, कुर्ते का दामन पकड़ेगा, उतने राजाओं को निकालो। और जितने राजाओं को आप अपना कुर्ता पकड़वाओगे ना, उतने को ले जाओ। तो उन्होंने क्या, जैसे ये वाली बात सुनी दामन पकड़ना, तो दामन पकड़ना यानी कि अपने आप को बेइज्जत कर देना होता है। और राजपूत राजा उस समय सिर कटा सकते थे, सिर नहीं झुका सकते थे। लेकिन ये वाली बात उन्होंने गुरुजी के मुंह से सुनी, उनको अच्छा लगा और बोले महाराज हम तो आपको गुरु मानते हैं, आप तो हमारे लिए रेस्पेक्टेड हो, आपके सामने तो हम सिर झुका सकते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने उनका सिर नहीं झुकने दिया। उनको छुड़ाने के लिए 52 कलियों का कुर्ता सिलवाया। एक एक कलियों को लंबा कराते हुए जो किले का जो मेन गेट देखा आपने, वहीं से निकाल के ले गए थे गुरुजी महाराज। और जिस दिन गुरुजी महाराज अमृतसर पहुंचे थे, उस दिन दिवाली का दिन था। उन्हीं की याद में बंदी छोड़ दिवस प्रकाश पर्व मनाया गया है। और उन्हीं की याद में यहाँ गुरुजी ने तपस्या की थी, जो आपने तपस्या वाला स्थान देखा होगा, गुरुजी महाराज की तलवार वगैरह रखी हुई है। 2 साल 3 महीने 9 दिन, तो उन्हीं की याद में वही गुरुद्वारा 1971 में बनाया गया। 2 साल 3 महीने 9 दिन। अच्छा, तो 1971 में वो गुरुद्वारा बना। बिल्कुल। और उसका नाम क्या है? गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ जी ਨੂੰ ਇੱਥੇ महाराज ज्ञान बांटने के लिए यहाँ आते थे। गुरुजी महाराज बंदी नहीं थे, इनको तो यहाँ नजरबंद किया गया था। तो वे ज्ञान बांटने के लिए आते थे राजाओं को।
शाम का वक्त यहाँ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। राजा को यहाँ पीड़ित ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਧਰ क्या है? इधर ही वो कुइया है, यहाँ राजाओं को अफीम डालकर पानी पिलाया गया ओह और गुरुजी महाराज ने भी इसी बावड़ी का पानी पिया जिससे राजा जिंदा बचने दिया। क्योंकि एक दिन में आप किसी को टॉर्चर करोगे तो हालत खराब हो जाएगी। वो 2 साल 3 महीने पिटे हैं राजा, लेकिन गुरुजी महाराज की वजह से वो जिंदा बच गए हैं। तो इसी वजह से उन्हीं की याद में दाता बंदी छोड़ उसको नाम अच्छा इसको इसमें अफीम मिलाया जाता था। बिल्कुल अफीम डालकर राजाओं को नीचे उतरकर पानी पिलाने के लिए दिया था। ओह और पहले ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्टेप वेल थी। इतनी ऊंचाई पर बारिश के पानी को जमा कर फिल्टर करने के 3 तरीके होते थे जो आप देख रहे हैं। छोटी छोटी नालियां बनी हुई हैं, हाँ 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 उसमें बारीक वाली चलनियां लगी हुई थी। पानी ओह। फिल्टर को नीचे करता था। ओके उसके ओके अंदर ओके जो बड़ी वाली वो लगी हुई थी, हाँ, हाँ, इसमें हाँ। बारीक वाली 7 चलनियां लगी हुई थी। ओके फर्स्ट वाली फिल्टर, सेकंड फिल्टर, थर्ड हाँ, 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 फिल्टर, हाँ, लास्ट में फिल्टर को पानी नीचे गिरा। उससे फिल्टर होके नीचे पानी उसके आता था। बाद इसमें जड़ी बूटियां डालते थे, तांबे के बर्तन डालते थे जिससे गंदगी नीचे पानी ऊपर से। काई तो उस समय भी लगती थी, काई हटाने के बाद पानी गंदा नहीं होता था, पानी और शुद्ध होता था। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने क्या है, अभी गंदगी डाल दी है इसलिए पानी गंदा हो गया है। ओह, और फिर बाद में राजाओं को अफीम डालकर पिलाते थे उसी समय, तो इसको गंदा पानी कर दिया था। लेकिन गुरुजी महाराज ने इसी बावड़ी का पानी पिया जिससे राजा जिंदा बच निकले। हम्म। सबसे अच्छा स्थान गुरुजी अच्छा महाराज गुरु का जी को इधर बांध के नहीं रखा गया था, गुरुजी महाराज को नजरबंद किया गया था क्योंकि खाली जहांगीर का- नजरबंद। जहांगीर का जो दीवान था, चंदू दीवान, खाली नजरबंद। हाँ वो गुरुजी तो बनना देना चाहता था। जहांगीर का दीवान, चंदू दीवान, चंदू दीवान। हाँ चंदू हाँ दीवान की लड़की थी। हाँ हाँ चंदू दीवान की लड़की का रिश्ता उन्होंने 5वें पातशाह जो गुरुजी महाराज थे ना, अर्जुन देव जी महाराज, हाँ हाँ उनसे कहा था कि आपके बेटे हरगोविंद साहब से मैं अपनी लड़की का रिश्ता करना चाहता हूँ। जो गुरु इधर थे हरगोबिंद जी। हाँ जी तो हाँ उन्होंने जी। मना कर दिया। उन्होंने कहा आपकी लड़की कितनी भी सुंदर हो, लेकिन आप मुगलों के दरबार में दीवानी का काम करते हैं, आपकी लड़की का रिश्ता मैं कराना चाहता हूँ। तो हाँ। उनके पिताजी को भी बंदी बना लिया था, लाहौर में गर्म तवे पर बजरी पे डाल दिया था। हाँ वो शहीद हो गए थे। वो गुरु अर्जन देव जी थे। बिल्कुल। फिर उनके पुत्र को भी यहाँ लाया था, लेकिन चंदू दीवान की गलती की वजह से गुरुजी महाराज को 2 साल 3 महीने रहना पड़ा। ये वाली बात क्या जहांगीर को मालूम नहीं थी। जहांगीर ने सोचा गुरुजी महाराज तो नजरबंद थे, 3 दिन के लिए गए और छोड़ दिया होगा, लेकिन वजीर की वजह से समय 2 साल 3 महीने हो गया। फिर बाद में गुरुजी महाराज की मालूम पड़ गया ना तपस्या कर रहे हैं, तब उसको आया। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਅਨਾਜ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ।